Okay, guys. So let me start with this. So in Power BI, there are many types of visualization are there. You can see this very whatever is most prominently used. Plus, there are many hidden visualizations are also there. मतलब जो भी आप ग्राफ देखे हो, everything can be done in Power BI. You'll ask me, sir, we can only see this much. Where are the rest of the things? It's there. So when you just get more visuals, just like our Play Store or App Store in Apple phones or Play Store in Google phone, there are n number of visualizations are available. So based on our need, how does it satisfy it? We will use a visualization. See, I cannot scroll it. N number of visualizations are there. Mostly, maybe some are repeated, some may be color change, something little bit different, but mostly we would be using all these charts, whatever is listed here. So let me start with a new page, guys. So can you tell me how, like, you might have heard of visualization, you might have seen pie chart or something, bar chart, anything in maths program, anything. So how many types of visualization do you guys know actually? Can you someone please explain, or at least tell me that what are the type of visualization you have used in your, maybe you might not have used, you have seen no in newspapers or something. See, Samsung has become number one with 80% share, Apple has become number one with 90% share, or car sales. Generally, which visualization chart they do to create maximum impact on the audience, huh? Let me open it and show it to you guys. Types, charts, comparison in automobile. See, guys, all these types of visualization, whatever you are seeing here, this is a Gauss chart. This is one type of visualization. Everything can be done, achieved in Power BI. And if you just search for market share, so which type of visualization, you'll get a pie chart. If you see the sales chart, it will give you a bar chart. If you opt for monthly sales chart, it will give you both. Maybe for this one is a table graph plus a monthly chart. This one is known as combo chart. So guys, all the visualization have different looks. मीन्स हर चीज का पर्पज अलग है. हमको समझना पड़ेगा कि वट एवर विजुअलाइजेशन वी चूज, वो क्लाइंट को आसानी से समझ में आए. जैसे कि हम लोग एक झटके में जब भी एक विजुअलाइजेशन हो या कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हम लोग को समझ में आ जाता है कि ये क्या बोलना चाहता है. तो हम लोग जब भी ग्राफ करेंगे या चार्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम लोग को भी एटलीस्ट समझ में आना चाहिए. सी, हम लोग को तो सारा विजुअलाइजेशन पता है, हम लोग कुछ नहीं भी देखेंगे तब भी पता चल जाएगा, क्योंकि हमने रॉ डेटा देखा हुआ है कि हमने ये बनाया है. बट जो एंड यूजर है, ही मे नॉट बी सो मच टेक सेवी, उसको इतना पता नहीं होगा, उसको बस विजुअलाइजेशन नंबर से मतलब है. तो हम लोग उसको दिखाएंगे कि मैक्सिमम इम्पैक्ट एक नंबर से कैसे कर पाएंगे, कौन सा विजुअलाइजेशन लेना है. तो गाइस, we'll start with each of the visualization. Let's start with bar charts. So guys, what is bar chart? Types of okay, guys. First is, guys, what is bar chart?
देखो, विजुअलाइजेशन बार चार्ट का मे भी स्टॉक चार्ट हो, कॉलम चार्ट हो, ऑल दीज आर विल कम अंडर वन बकेट ऑफ बार चार्ट। तो मैं आपको जनरली बार चार्ट्स बताऊंगा, उसके बाद व्हाट इज बार चार्ट। बार चार्ट आर स्टैंडर्ड फॉर लुकिंग एट अ स्पेसिफिक वैल्यू अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज। ताकि आपको एवरेज सेलिंग प्राइस देखना है या कुछ भी देखना है, देन वी कैन सी फॉर बार चार्ट। क्लियर गाइस? Some more information about bar chart is bar charts are mostly used graphs because they are simple to create and easy to understand. They are useful to display the data that include negative value because it's possible to position the bar chart below x-axis. So we'll go start with our bar chart. तो guys, आपके पास डेटा लोड होने का आपको पता चल गया, डेटा कैसे लोड करना है। ओके गाइस, क्लियर? एनी क्वेश्चन ऑन दैट? डू यू हैव एनी डाउट कि आपको लग रहा है कि आप डेटा लोड नहीं कर पाओगे? आप सबने बोला कि प्रैक्टिस किए हो, एटलीस्ट एक एक फाइल लोड किए हो, तो आपने डेटा लोड कर दिया। उसके बाद गाइस फर्स्ट स्टेप क्या करना है? फर्स्ट स्टेप आपको करना है कि देख, ये यहाँ पे देखना है कि सारा कॉलम जो भी डेटा में है यहाँ पर है कि नहीं। जब मुझे सारा कॉलम दिख रहा है, तब गाइस मुझे अभी एक बार चार्ट करना है। मुझे अभी चाहिए कैटेगरी वाइज प्रॉफिट। तो गाइस अगर ये मैं सीक्वल में करता कैटेगरी वाइज प्रॉफिट, तो मैं क्या करना पड़ता मुझे बताओ। मेरे पास सिर्फ एक ही टेबल है, डिटेल सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम डिटेल्स में। आई जस्ट हैव 1 2 3 4 5 6 8 कॉलम्स है। मुझे अभी कैटेगरी वाइज प्रॉफिट करना है, तो गैस मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ। सम ऑफ प्रॉफिट ग्रुप बाय कैटेगरी। सम ऑफ प्रॉफिट ग्रुप बाय कैटेगरी, तो हम लोग को एक एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा, करेक्ट? यस उसमें सर। मुझे क्या मिलेगा, कैटेगरी वाइज मुझे प्रॉफिट दिखाएगा। बट मैं आपको बोलूंगी पावर बीआई में आपको ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप बस रॉ डेटा भी पुल कर लो। सारा चीज हम लोग इधर ही कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने का भी हेडेक नहीं है, इतना इजी है। तो क्या करेंगे गाइस, फर्स्ट स्टेप शुड बी क्लिक ऑन न्यू विजुअल। तो एक डिफॉल्ट विजुअल आ गया, कोई भी सिलेक्टेड हो, डज नॉट मैटर। मुझे चाहिए कैटेगरी वाइज प्रॉफिट। कैटेगरी प्रॉफिट दोनों चीज मैंने ले लिया, कैटेगरी और प्रॉफिट। तो गाइस ऑटोमेटिकली ही हैज क्रिएटेड ए स्टैक कॉलम चार्ट फॉर मी। अगर आप बोलोगे कि नहीं सर मुझे बार चार्ट चाहिए, तो गाइस मैंने बार चार्ट बन गया। बार चार्ट आपको अगर ये पसंद नहीं आ रहा है, तो यू कैन चेंज टू कॉलम चार्ट और यू कैन चेंज टू क्लस्टर्ड बार चार्ट। आपने एक बार बना दिया तो उस हिसाब से आपको जो भी ठीक लगे वी कैन चेंज इट जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द आइकन। यहाँ तक समझ में आएगा इस कैसे करना है? यही चीज हम लोग ग्रुप बाय करके हम लोग को मिलता है, क्लॉथिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर का कितना वैल्यूज है, प्रॉफिट कितना हुआ है। उसके बाद बस आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो मुझे कुछ नंबर ही नहीं दिख रहा है, मैं कैसे पता करूँ? यहाँ पे थोड़ी मैं होवर करूंगा, किसी को पता नहीं होगा तो वो माउस थोड़ी लाएगा यहाँ पे। तो गाइस to overcome this we are having n number of formatting option, n number. Starting with, I will go with each of it. So guys, step one, let it keep it there. How to create a visualization.
बॉक्स। प्रिंट स्क्रीन कैसे होता है, एक सेकंड दो। Okay, I'll just mark it up, home, then new visual. Guys, is it clear, or do I need to take a screenshot so that directly you can go? Guys, I don't know why it's not happening. Okay, fine, leave it. न्यू विजुअल हो गया हम लोग का। उसके बाद आपका एक ब्लैंक आइकन आएगा, देन फ्रॉम दिस should be better, yeah, if we just give me 1 second, guys. Let me see why I'm not able to do this. अब विंडोज में कौन सा शॉर्ट, विंडोज शिफ्ट एस, ओके, विंडोज शिफ्ट एस। अरे काम नहीं कर रहा है, छोड़ो, कल ले लो। ओके, देन guys, visualization. Sir, please start the recording. I think I've already started the recording. Yeah, see, it's already being recorded. Okay, then guys, you have to go to visualization and select the visualization you want to make from number of choices. After that, select the data points on which visualization has to be made. ठीक है guys, let's stop it here. तो गाइस, हमने डेटा पॉइंट ले लिया कि मुझे चाहिए कैटेगरी और प्रॉफिट, इन दोनों का चाहिए। प्रॉफिट में भी आपको क्या चाहिए, तो जैसे कि ग्रुप बाय में कितना ऑप्शन रहता है, सम रहता है, काउंट रहता है, काउंट डिस्टिंक्ट रहता है, बहुत सारा ऑप्शंस रहता है। तो यहाँ पे हमने सम लिया है, क्योंकि सॉरी, यहाँ पे हमने लिया है सम। सम अगर गाइस देखो, यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंज करना है, देन जस्ट राइट क्लिक ऑन इट, इट विल ओपन ए नंबर ऑफ ऑप्शन। आपको क्या करना है, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, डिस्टिंक्ट, काउंट, बहुत सारा चीज ऑप्शन है। मुझे इसमें सम चाहिए, देन आई विल जस्ट सिलेक्ट द सम। अगर मुझे एवरेज चाहिए तो एवरेज प्रॉफिट पर कैटेगरी, तो मैं क्या करता गाइस, आई विल जस्ट सिलेक्ट द एवरेज, डायनामिकली इट विल चेंज। यहाँ तक समझ में आया गाइस, आपको क्या चाहिए, किस तरह से चेंज करना है। तो जैसे कि मैथ्स में आप वाई एक्सिस एक्सेसिस पढ़े हो, एग्जैक्टली सेम थिंग यहाँ पे है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। आई एम गोइंग वेरी स्लो, जहां भी डाउट आएगा आस्क, थोड़ा सा भी डाउट लगे पूछ लो। तो गाइस, ये वाला इस कैटेगरी में क्या क्या रहता है, कैटेगरी रहता है, एवरेज रहता है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कौन सा वैल्यू डालना चाहते हो,
और फिर लेजेंड में क्या डालना चाहते हो? लेजेंड मतलब क्या है गाइस? अगर मैं फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथिंग, तीन चीज आ गया, देखे होगे आप, मल्टीपल कलर वलर का आता है कि नहीं? उसके बाद मुझे चाहिए गाइस, फर्नीचर में भी सब कैटेगरी होगा। मैं डेटा थोड़ा देख लेता हूँ। देखो, देखो गाइस, क्लॉथिंग में क्या क्या सब कैटेगरी है, लेट्स सी। एक्सेल में जैसे देखते हो, सिंपल देखना है। देखो, इतने सारे मेरे पास सब कैटेगरी है कि नहीं? हैंड कर्चिप है, कुर्ती है, लेगिंग, साड़ी, शर्ट, स्कर्ट, स्टोल है, ट्राउजर है, टी शर्ट है। क्लियर फिल्टर्स, ओके। ओके गाइस, तो मेरा कैटेगरी आ गया। तो आप मुझे बोलोगे सर मैं कैटेगरी का चाहिए, मुझे सब कैटेगरी भी देखना है। आपको सब कैटेगरी भी देखना है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब कैटेगरी सिर्फ डाल दो लेजेंड पे। अभी गाइस ये क्या चेंज हो गया, ये बताओ। कौन से कैटेगरी में गाइस सबसे सबसे ज्यादा आपको मिला है प्रॉफिट, बताओ। क्लॉथिंग। क्लॉथिंग में मिला है। क्लॉथिंग में क्या, कौन सा मतलब एरिया सबसे ज्यादा है? ब्लू। ब्लू सबसे ज्यादा है। तो हम देखेंगे बिल्कुल। अभी कि ब्लू क्या है, साड़ी। साड़ी से उसको सबसे ज्यादा पैसा मिला है, 4,000 रुपये उसने प्रॉफिट कमाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में गए सबसे ज्यादा कौन सा है? प्रिंटर। ग्रीन वन कलर ग्रीन। ग्रीन कलर। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स टू प्रिंटर। प्रिंटर में सबसे ज्यादा पैसा उसको मिला है। फर्नीचर में गए सबसे ज्यादा पैसा उसको मिला है बुक केसेस में। सबसे कम मार्जिन किसका है यहाँ पे? लेगिंग्स में शायद उसका लॉस हुआ है 130 रुपीज, इसलिए वो माइनस पे है। स्कर्ट में भी और ज्यादा लॉस है, -315 पे। इसमें -415। इसमें सबसे कम किस में है? इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स में उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो गाइस देखो, जो हमने ये वाला चीज बना लिया है, आपको इस डेटा से इतना फाइंड आउट करने के लिए कितना टाइम लगता? कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी बनाओ, ये बनाओ, कौन सा प्रॉफिट है, कितना है, कितना टाइम लगता है गाइस आपको? इट वुड बहुत हैव टाइम। टेक बहुत टाइम लगता। 1500 रो है तो आपको 1500 रो में हर एक कैटेगरी का आपको सब कैटेगरी देख देख फिल्टरिंग करके। यस। एक एक बिल्कुल। करके आपको बनाना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि आप सिंपल बस वन स्टेप में आप आराम से इतना चीज अचीव कर लिए। दिस इज नॉट इट, वी कैन मोर वेल ब्यूटिफाई इट। तो देखिए एक्स एक्सिस में यहाँ पे क्या है गाइस, विजुअल में ये है फॉर्मेटिंग टैब। तो यहाँ पे जो जो आप टेक्स्ट वेक्स्ट सब देख रहे हो, एवरीथिंग इज कस्टमाइजेबल। देखो अभी मैंने कौन सा किया गाइस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कौन सा है? कौन सा है गाइस वाई एक्सिस? दिस वन। ये है गाइस वाई एक्सिस, दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस में वैल्यूज, वैल्यूज मतलब ये जो क्लॉथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर दिख रहा है, ये आपको फॉन्ट जो है मैं थोड़ा बड़ा करके बोल्ड करूंगा, ठीक से नहीं दिख रहा है मुझे। ये कोई फर्क नहीं पड़ता। और गैस टाइटल, टाइटल तो कैटेगरी तो ऊपर में हम हेडिंग में लिखेंगे तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसको ऑफ कर दिया, टाइटल को। लेआउट, आपको कितना हाइट रखना है, ये देखिए कितना हाइट रखना है, सब मेरे कंट्रोल में है। बोले ना, जैसे कि हम लोग वहां पे देख रहे थे, एग्जैक्टली सेम हम लोग यहाँ पे बना पाएंगे। तो गाइस देखिए, पहला हो गया हम लोग का वाई एक्सिस का। टाइटल मैंने ऑफ कर दिया, लेआउट जो है वैसे रहने दो। फिर जाएंगे एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस का गाइस क्या आता है, रेंज 0 से लेके 15,000 तक है। ये मिनिमम मैक्सिमम आप दे सकते हो। अभी के लिए लेट्स कीप इट ऑटो। फिर सेम थिंग इज वैल्यूज। वैल्यूज यहाँ पे ऑन है, ये भी थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, तो आई जस्ट मेक इट लिटिल बिट बिगर और दिस चेंज फॉन्ट टू सम अदर। यस, आई थिंक ये थोड़ा बेटर लग रहा है ना पढ़ने में, इजी टू रीड। और जो भी गाइस हम लोग चेंज करते हैं, आई एज्यूम दैट इट शुड बी सेम फॉर बोथ। अगर यहाँ पे चेंज करोगे, यहाँ पे करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेट्स चेंज फॉर बोथ। तो गाइस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का लेजेंड, लेजेंड का गाइस ये वाला जो ऊपर दिख रहा है, इसको आपको दिखाना है कि नहीं, ऑफ ऑन ऑन।
ये आपको कहाँ पे दिखाना है? टॉप लेफ्ट पे दिखाना है, टॉप सेंटर पे दिखाना है, कि टॉप राइट पे दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है? कि ऐसे ऐसे दिखाना है कि यहाँ पे दिखाना है? यहाँ पे दिखाने से बेटर है, इजीली एनीवन कैन अंडरस्टैंड, है कि नहीं? उसके बाद ये वाला जो टेक्स्ट है इसको भी हम लोग वही करेंगे, इसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं, थोड़ा सा ये ज्यादा, मतलब इससे तो कम ही लगना चाहिए, ठीक है? और गैस टाइटल, टाइटल क्या है? सब कैटेगरी, ठीक है? इसका टाइटल सब कैटेगरी लेजेंड लिख लेते हैं। ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस आई विल मेक इट ऑफ। यहाँ पे जो लाइंस लाइंस आ रहा था अच्छा नहीं लग रहा, अभी पूरा नीट लग रहा है। बार्स, बॉर्डर देना है, बॉर्डर भी दे दो। बॉर्डर्स किसका देना है गाइस? इस सब चीजों का। देखो यहाँ पे बॉर्डर ऑन करने से ऐसे बॉर्डर्स आ जाता है। लेआउट कितना रखना है आपको कैटेगरी में स्पेस? लेट्स पार्क इट एट मे बी 15, ओके? स्पेस बिटवीन सीरीज इज, लेट्स कीप इट 1 px, ताकि इजीली डिस्टिंग्विशेबल लगे। और गैस मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको हमेशा जो ऑन करना पड़ेगा, दैट इज डेटा लेबल्स। ये करने से सारा चीज मुझे क्लियरली दिख गया, कौन सा कैटेगरी कौन सा है। क्लियर गैस? एनी क्वेश्चन? हम्म? अगर आपको ये हटाना है, आप यहाँ पर भी टाइटल ऑन करके कहाँ पे करोगे? डेटा लेबल्स पे टाइटल ऑन करके। कौन सा इजी है गाइस? यहाँ पे देखना है कि डायरेक्टली इट गिव्स एवरीथिंग, व्हिच इज इजियर? हम्म? और गाइस मैंने यहाँ पे टोटल लेवल्स भी जो है वो भी ऑन कर दिया। टोटल लेवल्स मतलब टोटल भाई क्लॉथिंग का सेल हुआ है 13,000, उसका मुझे ब्रेकअप भी इधर से ही मिल गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल हुआ है 13,000, उसका मुझे इधर से मिल गया। कौन सा कैटेगरी का कितना सेल हुआ है? अंडरस्टूड गाइस? एनी डाउट? कुछ डाउट है तो बताओ, आई एक्सप्लेन इट अगेन, नॉट इश्यू। बट ये समझ लो क्योंकि हर चीज में यही आपको काम आएगा। अभी गैस ये होने के बाद आपको लग रहा है कि इसका जरूरत है क्या? No, sir. क्योंकि हमने सारा चीज इस पे ले लिया, हम लोग कोई भी देखेगा तो डायरेक्टली ही कैन अंडरस्टैंड दिस। सी, दिस चार्ट will give you a lot of answer to your questions, Yes. okay? Everything is visible there. Yeah. You can Everything is find it out anything. yes, you can find out anything in a much easier way. तो हमने देखो इस डेटा को we can design it in this way. ये गैस हो गया हमारा फॉर्मेटिंग का, विजुअल हो गया। उसके बाद हम लोग जाएंगे गैस जनरल फॉर्मेटिंग। जनरल फॉर्मेटिंग में क्या क्या रहता है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होता है गैस? इसका हाइट और विड्थ क्या है? तो बोलोगे सर हम तो इधर से मैन्युअली एडजस्ट कर देते हैं, हाइट विड्थ क्यों चाहिए? पूछोगे कि नहीं आप लोग? हम लोग तो इधर से जितना चाहिए, हाँ ये इतना अच्छा लग रहा है, ठीक है रख लो, इतना अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा सा गैप छोड़ दो, इधर थोड़ा सा गैप छोड़ दो, बस हो गया ना, ये अच्छा ही लग रहा है, बोल सकते हो ये। बट ये हाइट विड्थ कब चाहिए? जब हम लोग एक एग्जैक्टली डैशबोर्ड बनाते हैं। देखो इस तरह से, देखो ये एक लग रहा है कि मतलब, तो सारे जो बॉक्स है और सारा ये अलाइनमेंट और ये एग्जैक्टली सेम है। आपने कोई कभी किसी वेबसाइट पे देखा है कि एक का मतलब छोटा हो, किसी का फिल्टर छोटा हो बड़ा हो, या मे बी ग्राफ जो फ्लिपकार्ट आपको दिखाता है, एक एक पेज में शायद दो दो इमेज आता है ना? आप जब स्क्रॉल कर रहे हो मोबाइल में, कोई सपोज आपको कुछ बैग या कुछ पसंद आ जाए तो दो दो इमेज आ रहा है, एग्जैक्टली सेम साइज रहता है कि अलग अलग रहता है? सस्ता वाला छोटा रहता है, Same महंगा वाला size. बड़ा Same रहता है? size. नहीं,
सेम साइज रहता है सर। सेम साइज रहता है, कहीं भी जाओ तो सेम साइज या यूनिफॉर्मिटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये साइज तब काम आता है जब हम लोग इसको एक डैशबोर्ड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे मैंने 12 चीज लिया हुआ है। तो ये चारों का साइज सेम है, ये चारों का सेम है, तो एग्जैक्टली यूनिफॉर्मिटी के लिए मुझे एक साइज यहाँ पे चाहिए होगा। दैट रीजन वी हैव टू, whatever size is given, we have to set the size for other as well. पोजीशन भी चाहिए, कोई इससे यहाँ से शुरू होगा, कोई यहाँ से नहीं। ये 30 और 33 है। अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूं, 2 आ जाएगी, मैं यहाँ रख दूं, नहीं होगा। इसको मैं यहाँ रख दूं, नहीं होगा। कि एक आपको कैटेगरी के साइज मिल गया, एक प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। तो इसका मैं टाइटल लिख देता हूँ, जनरल टाइटल, प्रॉफिट बाय कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। टेक्स्ट कलर रख देते हैं इसका, ये बैकग्राउंड कलर वाइट, वाइट नहीं ब्लैक कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं मे बी वाइट मिड। प्रॉफिट एंड कैटेगरी, प्रॉफिट बाय कैटेगरी एंड सब कैटेगरी गाइस, ठीक है। ये गाइस मैं करूंगा इसको चेंज क्वांटिटी वाइज। तो यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट मिल गया कि साड़ी में आपको 4100 मिला है। तो आप एक साड़ी में 4000 कमाए हो कि 50 साड़ी में 4000 कमाए हो, वो भी तो जानना पड़ेगा मुझे। तो मुझे देखिए, इसको मैं बस कॉपी करूंगा। यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट बाय कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी सेम ही है। मैं बस इसको प्रॉफिट को हटा के क्वांटिटी डाल दूंगा। आ गया गैस, सेम चीज, या फिर से बताऊं? सर वन मोर टाइम। श्योर। देखिए, आपको कोई विजुअलाइजेशन, आपके पास ये विजुअलाइज, ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें थोड़ा सा बाकी है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें जनरल में इफेक्ट्स में जाके आई विल गिव यू ए बॉर्डर। ओके, सो दिस इज कंप्लीट। ये मुझे पूरा आराम से समझा रहा है कि भाई तुम क्लॉथिंग में 13,000 सेल किए हो, उसमें से टी शर्ट 1500, ट्राउजर 2800, जो भी है मैक्सिमम तुम्हारा सेल हुआ है यहाँ पे साड़ी का, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रिंटर्स का, फर्नीचर में बुक केसेस का, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने प्रॉफिट बता दिया। फिर बोलोगे, कोई आपसे पूछेगा कि फिर से तुम, मुझे चाहिए इसका क्वांटिटी भी चाहिए। एक बुक केस में मुझे 6500 मिला है, क्योंकि देखो एक गाड़ी का प्रॉफिट रहता है 1 लाख या 2 लाख रुपए डीलर को। बट एक पेन सेलर जो पेन बेचता है, उसको कितना टाइम लगेगा 2 लाख कमाने में? हम्म? एक गाड़ी का अगर सेल कर देगा, सपोज आज कोई एक शोरूम, सपोज आज के दिन में टाटा हैरियर सेल कर दिया, 25 लाख का गाड़ी है, उसको डीलर को 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया। कोई एक बुक स्टोर है, बुक स्टोर को 1.5 लाख कमाने के लिए कितना चीज सेल करना पड़ेगा बताओ? मे बी पेन उसको 10 लाख करने पर 1 लाख मिलता होगा, करेक्ट। तो वो क्वांटिटी भी चाहिए हमको। प्रॉफिट तो मिल गया, बट साड़ी भाई तुम 4,500 कमाए हो, कितना बेचे हो? एक साड़ी में 4,000 है, डिजाइनर साड़ी है, कि 1 लाख साड़ी में 50-50 पैसा प्रॉफिट किए हो, कि क्या किए हो तुम? कोई तुम्हें ये भी क्वेश्चन पूछ लिया कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी मुझे दिखाओ। तो क्योंकि आपने ऑलरेडी बना दिया है, फ्रेमवर्क है, तो बस आपको क्या करना है, इसको कंट्रोल सी करो, कंट्रोल भी करो, एग्जैक्टली सेम रेप्लिका आ गया मेरे पास। जैसे कि हम लोग एक्सेल में कॉपी पेस्ट करते हैं या कहीं भी करते हैं, सेम थिंग वर्क से कॉपी पेस्ट आ गया। तो यहाँ पे देखो गाइस, एक्सिस में क्या है, कैटेगरी है, वाई एक्सिस पे कैटेगरी, एक्स एक्सिस पे सम ऑफ प्रॉफिट है। तो मुझे सम ऑफ प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे क्वांटिटी देखना है। तो मैं गाइस इसको डिलीट कर दूंगा, रॉन्ग, डिलीट, क्वांटिटी को डाल दूंगा, बस मेरा काम हो गया।
कॉपी पेस्ट करके उसको डिलीट करके देन हाँ whatever you want आप to do there हाँ that you have to just और कोई बोलेगा drag and आप drop ड्रैग एंड the ड्रॉप, same दैट्स इट, place. Okay. दैट्स इट। कोई बोलेगा आपको कैटेगरी सब कैटेगरी इसमें चाहिए भी नहीं, उसको भी हटा सकते हैं, हटा दो। तो Okay. 13,000 प्रॉफिट क्या है, 3,500 सेल किया है। इसमें 13,000 प्रॉफिट क्या है, 1,100 सेल किया है, तो इसका मार्जिन ज्यादा है। फर्नीचर भी अच्छा खासा मार्जिन है, 945 सेल किया है, उसको 10,000 का मार्जिन है। अंडरस्टूड गैस? एनी Yes, sir. क्वेश्चन ऑन दिस? देखो ये सब चीज हर ग्राफ में लगभग इसी तरह से रहेगा, एक चीज समझ लो तो बाकी का बस आपको कौन सा ग्राफ यूज करना है वो समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आई एम टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस ऑल दिस थिंग्स। Sir, I have a question. In प्लीज। the real scenario, हाँ। you work for an office, so यस। uh, how that works come to you? Like how what they will like ask you to do, like you know. ओके, जनरली देखो तुम्हारे पास ऐसे वर्क मिलेंगे कि सपोज मैं तो रिटेल में हूँ, तो मैं रिटेल का हेल्थ केयर का बता सकता हूँ, ठीक है, मैं जो काम करता हूँ। तो हेल्थ रिटेल का आपको पता चलेगा कि फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन सेल आता है ना, तो आपको मुझे इन्वेंट्री चेक करने के लिए बोला जाएगा, इन्वेंट्री रिपोर्ट भाई बना लो, Okay. इन्वेंट्री रिपोर्ट बना लो, उस तरह से बस पर बोलेंगे इन्वेंट्री रिपोर्ट बना लो कि मुझ फिर पूछूंगा सर आपको क्या क्या चीज चाहिए, इन्वेंट्री रिपोर्ट में आपको क्या चाहिए। Okay. तो इन्वेंट्री रिपोर्ट में उनको चाहिए कि टी शर्ट का मेरा स्टॉक कितना है, कौन से गोदाम में कितना स्टॉक है। तो वो एक रिपोर्ट बन गया, पहले इन्वेंट्री रिपोर्ट बनने के बाद फिर वो डेटा एनालिसिस मैं करता हूँ कि कौन से एरिया से ज्यादा डिमांड है, Okay. तो उस टाइप से एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है Okay. यूज केस देख के। They will tell you in the details what you have to do, right? So नहीं based नहीं, on वो बस तुम्हें बता देंगे कि मुझे देखो अगर मेरे पास सपोज मुझे कंपनी में ये डेटा मिल गया है, ठीक है। okay. हम्म। मुझे बता जाएगा कि मुझे बताओ कि कौन सा सेक्टर से सबसे ज्यादा मुझे प्रॉफिट मिला है और कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा लॉस हुआ है, बस सिंपल इतना ही बताएंगे तुम्हें, और कुछ आगे कुछ नहीं बोलेंगे। Okay. तो उसके हिसाब से तुम्हें अगर कुछ डेटा मिसिंग है, डेटा पॉइंट नहीं है, तो तुम मांग सकते हो कि सर मेरे पास ये डेटा नहीं है, तो मुझे डेटा दे दो, मैं करके दे दूंगा, या मेरे पास डेटा है। और कौन सा डेटा क्या है, पहले तो जब भी हम लोग को इस तरह से एक डेटा मिलता है तो मुझे 2-3 मिनट क्या 1-2 दिन भी लग सकता है। यहाँ पे तो जनरली 10 रो है मेरे पास, 50-60 रो कॉलम्स रहता है, ठीक है। तो Okay. 50-60 कॉलम्स में मीनिंगफुल कॉलम्स जो मेरे एनालिसिस के लिए चाहिए कितने होंगे, 20। और ऊपर से और ज्यादा अगर कंडेंस करना है तो 10। तो उसमें से 10 कॉलम कौन सा मुझे ढूंढना पड़ेगा पहले। उसके बाद मैं तो आपको आपको जो भी क्वेश्चन मिला है कि अगर मुझे ये दिखे तो उनको बताना पड़ेगा कि देखिए मैं आपके लिए ये एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आप एक ड्राफ्ट भेजोगे कि ये एनालिसिस हो गया। तो वो बोलेंगे कि ठीक है, दिस लुक्स ओके बट आई आल्सो नीड, जैसे कि मैंने आपको बोला आपने प्रॉफिट कर दिया, बट आपको ये याद नहीं था कि क्वांटिटी भी दिखाना है। तो आपको Okay. बोलेगा प्रॉफिट तो मैंने कर दिया, तुम क्वांटिटी भी ऐड कर दो, तो आपको रिपोर्ट पे ऐड करते करते जाना है। Okay. हाँ, तो इस तरह से इट विल स्टार्ट फ्रॉम जस्ट डेटा, इट विल एंड अप इन ए टोटल कंप्लीट रिपोर्ट। Okay. Then after done your report, how you release this? आई पब्लिश दिस, Okay. आई पब्लिश दिस। पहले हम लोग का डेव एनवायरनमेंट रहता है, जब भी आप आगे मतलब करेंगे कंप्लीट रिपोर्ट इस तरह से करेंगे ना, ये देखो ये ई कॉमर्स का कंप्लीट रिपोर्ट है, जो भी आप देख रहे हो हम कर रहे हैं। तो कितना Okay. सेल हुआ, कितना अमाउंट सेल हुआ, कितना क्वांटिटी सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारा Okay. चीज है। कौन से मंथ Okay. पे कितना प्रॉफिट हुआ, सबसे Okay. ज्यादा प्रॉफिट मुझे किसने दिया है, और पेमेंट मोड मेरा सबसे ज्यादा किस में हुआ है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन खुद करके देना पड़ता है। Okay. Okay, sir. Got you. Thank you so much. हाँ, और मैं एक्चुअली डेटा गवर्नेंस में हूँ, तो मुझे देखना पड़ता है कि डेटा गवर्नेंस का मतलब है वॉलमार्ट का जो डोनेशंस रहता है, और जो जो सामान जो एक्सपायरी हो जाता है आपका, ठीक है, Okay. एक्सपायरी हो जाता है वो स्टोर में नहीं रखना पड़ता हम लोग को। नहीं सर। तो तो ऑटोमेटिकली जो चेकिंग होता है कि कब मैन्युफैक्चर हुआ कब सेल हुआ, तो मैं एक हर दिन एक क्वेरी चलता है और रिपोर्ट में आपको दिखेगा कि ये स्टोर में ये सामान एक्सपायरी का डेट बहुत नजदीक है, मे भी 10 दिन के अंदर एक्सपायरी हो रहा है, तो आप लोग उसको हटा दो।
अभी मैं Okay. ये वाला काम करता हूँ। इस तरह से बहुत प्रोजेक्ट किया। अभी लेटेस्ट मैंने ये वाला काम पे काम किया था Okay, sir. कि ये दिस इज नियरिंग टू, क्योंकि देखो कैसे ट्रैक करेंगे, 10 टेबल होगा आपके पास, 10 या कितना टेबल होगा, तो मैं फाइनल डेटा में डेटा स्टोर को एंट्री कब हुआ, एग्जिट हुआ कि नहीं, एग्जिट नहीं हुआ तो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करो, एक्सपायरी डेट चेक करो, आज के पहले है कि 10 है, 10 दिन के अंदर अगर वो फॉल कर रहा है देन उसको एक रिपोर्ट बना के फ्लैश कर दो कि ये स्टोर में ये एक्सपायरी हो रहा है। तो स्टोर का डाटा अपने आप देख पाएंगे कि आज मेरा 10 दिन में ये एक्सपायरी हो रहा है, इसको हटा दो। Okay. तो इस कितना तरह टाइम से लगता है इसको करने में? ये तो देखो बड़ा प्रोजेक्ट था, तो लगभग 3-4 महीने लग गए हम लोग को, Okay, okay. क्योंकि हम लोग को इनिशियली में डेटा कहाँ से पुल करना है, जो स्टोर का जो आपका जो ऐसे स्कैन नहीं होता है, वहां से Yes, डेटा sir. पुल करना है, रखने का और वहां करने का, फिर लॉजिस्टिक्स का डेटा लेना है कि कब सामान आया था, सामान एक्सपायरी आया था क्या, तो मैन्युफैक्चर के पास भेज दो। तो वो सब Okay. चीज ट्रैक करके हम लोग को एक पूरा प्रोजेक्ट बनाना पड़ा, तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम लग गया। Okay, sir. जनरली इस तरह भी प्रोजेक्ट आता है जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि पूरा लार्ज स्केल में ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड में, और छोटा छोटा रिपोर्ट जैसे कि ये बना रहे हैं इस तरह भी आता है, तो वैसा कुछ नहीं है। Okay, sir. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आपको मेन बोला ना कि मेन चीज आपको टाइम लगेगा डेटा जो मॉडलिंग, इसलिए बोलता हूँ कि सीक्वल में स्ट्रांग रहो। पावर बीआई तो आपको 2 दिन नहीं, 10 दिन 15 दिन में आप में भी अगर डेली अगर प्रैक्टिस करोगे तो सीख ही लोगे। सीक्वल में अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इंस्टेंटली आप कर नहीं पाओगे। सीक्वल में अगर आपका अच्छा खासा आइडिया है तो इसमें भी तो सोच पाओगे कि ये मुझे ग्रुप बाय करना है कैटेगरी, और ये तो इसमें क्या क्या करना है, इसमें बस यहाँ पे डाल देने से हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो आपको एक माइंडसेट आ जाएगा, एक प्रॉब्लम को अप्रोच करने का आपका माइंडसेट आ जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, सो विल सी दिस नाउ। देखो इसका साइज मैंने अभी थोड़ा बड़ा कर दिया है, इसका साइज थोड़ा छोटा कर दिया है, तो ये ठीक लग रहा है कि अभी नहीं लग रहा है, बोथ आर नॉट इन सिंक। तो इसका भी साइज है 184 1230, इसको भी मैं करूंगा 184 1230, और फिर पोजीशन है इसका 0 और 372, इसका कौन सा है, जीरो और 372 तो नहीं होगा, 30 33 है इसका है, अच्छा इसको भी हम 30 कर देते हैं। ठीक है गाइस, अभी ये ठीक हो गया। हम्म Yes. ये सब है फिल्टर स्लाइसर, आगे बताऊंगा। ये जो रिपोर्ट बना है इसमें आपको कोई कोई भी आके कुछ भी देख सकता है। सपोज आपको मई मंथ का सेल्स देखना है तो देखो मई मंथ में कौन से स्टेट में कितना सेल हुआ था पता चल जाएगा। जनवरी मंथ पे सेल देखना है तो जनवरी मंथ में कहाँ कहाँ बिक्री हुआ था, कौन कौन सा चीज बिक्री हुआ था। मेनी थिंग्स आर देयर गाइस, विल एक्सप्लोर इट, इसलिए बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करते रहो, बहुत सारा चीज है। सर इस हाँ बता। सेकंड चार्ट में हैंडकरचिप के बाद जो यहाँ पे माइनस पे है, इसलिए नहीं दिखा रहा है। नहीं नहीं माइनस पे नहीं, ये एक्चुअली स्पेस कांस्टेंट रहता है ना, तो हर चीज रखना बहुत क्लटर्ड हो जाएगा, इसलिए जो जो स्पेस उसको मिलता है वही दिखाएगा, बाकी का वो नहीं दिखाएगा। यहाँ पे हम लोग दिखाने का पॉसिबल ही नहीं है, लेगिंग्स का पॉसिबल है क्या, नो। ओके। इसीलिए नहीं दिखा रहा है। तो देखो मेजोरिटी तुम्हें क्या देखना है कि सबसे ज्यादा कौन सेल हो रहा है, तो यहाँ पे आपको पता चल ही जा रहा है, फिर भी आपको देखना है तो आप होवर करके देख सकते हैं। और जो होवर करके देखते हो उसको बोलते हैं क्या हम लोग, देखो भाई इसको सिलेक्ट करोगे उसको गाइस हम लोग बोलते हैं टूल टिप्स। यहाँ पे आप उसके साथ पेमेंट मोड भी जोड़ना चाहते हो, पेमेंट मोड के लिए मेरे पे यहाँ पे जगह नहीं है, बट किसी को अगर देखना है, सपोज समवन वांट्स टू सी 671 में कितने मेरे पेमेंट मोड हुए थे, तो गाइस यहाँ पे पेमेंट मोड भी डाल दो।
देखो आ गया पेमेंट मोड। यस। तो ये कैसे टूल टिप्स, तो इसमें आप अनलिमिटेड जितना भी चाहो सारा डेटा रख सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास लिमिटेड है। कोई अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखना चाहे तो उसको तो मना नहीं कर सकते, उसके लिए हम रखेंगे। कोई डीप डाइव करना चाहता है देन इट्स ओपन। देखो गाइस ये चार्ट मैंने बना दिया अभी, ठीक है, बार चार्ट। तो आप बोलोगे सर ये बार चार्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे चेंज कर दो। ठीक है, कॉलम चार्ट बना दो, ये भी ठीक ही है इस केस में। हाँ नहीं सर मुझे ये क्लस्टर्ड बार चार्ट चाहिए, तो क्लस्टर्ड बार चार्ट कर दो। ये इंडिविजुअल लेवल पे ब्रेक ब्रेक कर दिया आपको, क्लोथिंग का और इसका सब इंडिविजुअल लेवल पे ब्रेक कर दिया। फिर गैस ये आता है क्लस्टर्ड बार चार्ट। अगर आपको ये वाला पसंद है वी कैन यूज दिस ऑल्सो। ये थोड़ा सा मतलब इंफॉर्मेशन आपका ज्यादा फोकस पे दिखा रहा है कि आपका क्लॉथिंग में ये 1 2 3 है, ये तो माइनस में है, छोड़ो पीछे चला गया है। और सबसे ज्यादा प्रॉफिट साड़ी में हुआ, इट्स इजी टू रीच। अगर हमारे पास विजुअलाइजेशन कम है यहाँ पे, अगर जगह पे फिट हो रहा है तो हम यू कैन शो दिस। बहुत बड़ा ज्यादा डेटा है देन वी हैव टू गो विद दिस वन। दिस वन इज ऑल्सो गाइस गुड वन। यहाँ पे डायरेक्टली सब 100% है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये जो प्लस है इस गेट्स नेगेटेड एंड इट बिकम लाइक दिस। So guys, these are the type of bar charts. Clear guys? Any question? देखो इस बार चार्ट है और जो सीधे वाले हैं दीज आर कॉलम चार्ट्स, दिस इज बार चार्ट। तो कोई डिफरेंस है क्या इसमें? बस आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज हो जाएगा इसमें। देखो इसमें कैटेगरी है, सम ऑफ क्वांटिटी है, इसमें उल्टा हो जाएगा। देख रहे हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये बस उल्टा हो जाएगा। देर इज नो चेंज इन बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट। ओके, एनी क्वेश्चन गाइस? सर इन दोनों चार्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है? किस में? इन दोनों चार्ट में? लाइक बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट में। नहीं कोई डिफरेंस तो है नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कुछ डिफरेंस ही नहीं है। लाइक मैं पूछ रहा हूँ कि लाइक कब बार चार्ट यूज करेंगे एंड नहीं कब। नहीं, देखो देखो मैं बताता हूँ। देखो आज एग्जांपल दिस, यहाँ पे मैंने क्यों यूज किया बार चार्ट, कॉलम चार्ट क्यों यूज नहीं किया? मैं यहाँ पर भी कर सकता था, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा जगह ज्यादा था, तो मुझे बहुत सारा वैल्यू दिखाना है। इट विल लुक अट्रैक्टिव टू मी। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा इसको, देखो अच्छा लग रहा है क्या? ये स्क्रॉल करना पड़ रहा है तुम्हें, देखो। राइट। तो ये वाला यूज करने से बेटर है, क्योंकि मेरे पास 12 ही मंथ है ना, और कभी तो बढ़ेगा नहीं जिंदगी में, ये बढ़ेगा क्या? और यहाँ पे क्या है, मैं टॉप 5 ही दिखा रहा हूँ। सम ऑफ प्रॉफिट सब कैटेगरी टॉप 5 कैटेगरी में दिखा रहा हूँ। अगर मैं टॉप 5 दिखा रहा हूँ तो ये जिंदगी भर नहीं बढ़ेगा। मे भी आज प्रिंटर से कल टेबल्स आ जाएगा, आज 3.5 पे है, कल में भी 1 पे आ जाएगा, कोई इधर उधर होगा, बट इसी जगह पे मेरा फिट हो जाएगा गारंटेड। तो बेस्ड ऑन यूज केस हम लोग को बताना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अभी तो ठीक ठाक आपको समझ में आ रहा है, अगर यहाँ पे 1000 कैटेगरी आपको समझ में आएगा, इसमें नहीं आएगा क्या? आपके पास इतना ही जगह है, कुछ समझ में आएगा ये? क्या आप कैसे फिट करोगे बताओ? मेरे पास अब इतना ही जगह है, आपको इतने जगह में ही सारा विजुअलाइजेशन रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। भले आप बार चार्ट करो, कॉलम चार्ट करो, कुछ भी करो। अगर मैं ये कॉलम में देखो थोड़ा बहुत हैंडकरचिप दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, अगर मैं इसको अभी उल्टा कर दूं, दिख रहा है कुछ? नो। सो इन दिस केस गाइस यू हैव टू यूज दिस चार्ट। देखो ये कुछ नहीं है, ये दिस इज अभी कौन कौन सा चार्ट यूज करना है, आई विल शेयर अ चार्ट विथ यू। आप लोग आराम से देख के उस बेसिस पे जो आपको
थीम जो रहे उस हिसाब से हम लोग चार्ट बना सकते हैं। वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये यहाँ पर आपको यही चार्ट दिखाना है, नहीं। अगर कंपैरिजन करना है, डेट वेट कुछ आएगा तो आपको लाइन चार्ट दिखाना है, ऐसे जनरल रूल है। तो उस हिसाब से हम लोग को इस, अगर डेटा आपको इस क्लियरली दिखाना है तो आपको ये चार्ट दिखाना है, वैसा कोई जनरल रूल नहीं है। अगर मैं इस ये भी दिखा सकता हूँ कि नहीं, both are showing information but based on situation this looks better। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, देखो यहाँ पे अगर 12 ही मंथ है तो ये करने से नहीं होगा, दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस कॉलम चार्ट। अगर मेरे पास यहाँ पे ज्यादा जगह होगा तो मैं भी कॉलम चार्ट यूज करता। उस हिसाब से गाइस आपको करना पड़ेगा। डोंट वरी गाइस, यहाँ पर बस अभी देखो क्या क्या हो रहा है। विल डिस्कस दिस ड्यूरिंग आवर प्रोजेक्ट टाइम, और बीच में आप खुद ही प्रैक्टिस करो, खुद ही समझ जाओगे, नहीं तो आई एम देयर। ओके। और गैस एक चार्ट आता है, न्यू चार्ट है, कॉलम चार्ट, कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट गैस क्या है? तो कोई बोले यहाँ पर क्या हुआ गैस, सम और ये तो हम लोग अलग अलग देख दिए। कोई बोलेगा मुझे एक ही में देखना है, मुझे दो चार्ट क्यों चाहिए? कॉम्बो चार्ट, कॉम्बो चार्ट क्या है गैस? देखो, कॉम्बो चार्ट इज ए मिक्स ऑफ टू चार्ट्स। तो यहाँ पर देखो, लाइन चार्ट और स्टैक कॉलम चार्ट। तो मैं सपोज कॉम्बो चार्ट को सिलेक्ट कर लिया, न्यू विजुअल कॉम्बो चार्ट। मुझे चाहिए गैस कौन सा, कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज प्रॉफिट क्वांटिटी। Yes, guys. So what does it signify, guys? बताओ. What does this signify? This chart, what does it signify? I will make a contrasting color for this so that no. नहीं, linearly ठीक है, सब मोटा कर देते हैं। Joint type, round भी ठीक है। Solid, okay। कलर 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 इसको चेंज करके हम थोड़ा रखते हैं ये। ठीक है गाइस, देखो यहाँ पे हमने बनाया क्या, दो दो चार्ट अलग अलग बनाया हमने। एक में हमने दिखाया प्रॉफिट दिखाया, दूसरे में दिखाया हमने क्वांटिटी। टू अवॉइड द कंफ्यूजन आई विल जस्ट क्वांटिटी। एक में गाइस हमने दिखाया प्रॉफिट और क्वांटिटी, तो हर कैटेगरी का कितना सेल हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे पता चल गया। उसके बाद क्वांटिटी कितना सेल हुआ है, तो क्लोथिंग का 13,000 प्रॉफिट में 3,500 आया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 13,000 में 1,100 आया है। कॉम्बो चार्ट, कॉम्बो चार्ट में गैस क्या है, दोनों चीज हम एक साथ देख रहे हैं। देखो यहाँ पे 13,000 प्रॉफिट है और 3,500 बिक्री हुआ है, सेम थिंग है। देखो कितना है गैस, 13,000 प्रॉफिट है, 3,500 बिक्री हुआ है। यहाँ पे 13,000 प्रॉफिट है, 1,100 बिक्री हुआ है। तो यहाँ पे 13,000 प्रॉफिट है, 1,100 कितना बिक्री हुआ है, 1,200 बिक्री हुआ है। तो सेम थिंग हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। इसमें क्या हुआ, मेरा स्पेस बच गया और इट आल्सो लुक्स गुड टू मी, क्योंकि इजीली कोई भी देखेगा भाई 13,000 प्रॉफिट में 3.5 बेचा है, ठीक ही है। ये 13,000 में 1,200, तो ये ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। उस हिसाब से हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे। इसका भी देखो गाइस, मैंने आपको जो बोला कि जो जो चीज हमने किया, यहाँ पर भी सेम फॉर्मेटिंग सारा चीज है। एक्स एक्सिस रखना है, हटाना है, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। गाइडलाइंस ऑफ ये आप रख सकते हो, नहीं रख सकते, मार्कर्स भी ऑन कर सकते हो, नहीं कर सकते, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। अंडरस्टूड गाइस? कॉम्बो चार्ट, व्हाट इज दिस?
This is a combination of both the line chart and column chart that will help you make a quicker comparison of the data. It shows two relationships in a single visualization. Understood guys? Clear? Any question on this? यहाँ पर भी हम, अगर आपको सब कैटेगरी भी देखना है तो लेजेंड में डाल के देख सकते हैं. फिर से देखो, this become very cluttered, but we cannot help it, but to keep it, or we can remove this. Any doubt guys, or clear? Clear, sir. Yes guys, so again we'll meet tomorrow with more charts. Okay, keep practicing. सर अगर ये डाटा शेयर कर देंगे. हाँ ठीक है, ये कोई भी डेटा ले लो ना, ये दिस इज मेरे पास होगा तो मैं शेयर कर देता हूँ, नहीं तो आप कोई भी डेटा उठा लो. तो लास्ट क्लास में आपको शेयर किया था ना, वही डेटा से करो. लास्ट क्लास का डाटा होगा ना, मैंने तो सबके साथ शेयर किया था, नहीं था क्या? नहीं है सर, फिर से अगर शेयर कर देंगे. ठीक है मैं कर लूंगा, नो प्रॉब्लम. रुको डेटा देखता हूँ कौन सा है. Just wait for 1 minute guys, I'll share the data right now. Okay. Yeah.